Good morning, Mr. Rohit Agrawal and other friends. Our, our today's chief guest and also resource person is Mr. Rohit Agrawal, who is a mechanical engineer from GSISTS Indore, that is Madhya Pradesh. He did that degree from in 1999 and also studied business management from MDI Gurgaon in 2002. After his MBA, he worked as a fundamental analyst in a mutual fund for about 1 year. He was also a founder partner of education startup, that is the Learning Karu. Rohit is a thought leader, strategic, and a passionate entrepreneur. Currently, he is the chief executive officer of one of the leading bamboo processing technology companies in India. Under his leadership, the company has been successfully executing on its vision to create hundreds of entrepreneurs in rural and tribal India. He has successfully led the development of technologies in bamboo processing industry to produce extremely cost-effective machinery which benefits the economically backward strata of the society. Rohit is a technologist and a survey businessman. He is extremely well networked in his industry and is recognized a thought leader. He participates and addresses various similar conferences, forums, seminars as a speaker and resource person as well as a panelist. He loves organizational building, product development, technology innovations, training, process engineering, etc. He is driven by excellence in all his pursuits. Mr. Rohit believes in developing an ecosystem for an industry to flourish. Over the last decade, he has been working closely with the various state and central government departments, self-help groups, NGOs, trade groups, and associations, etc., to develop the right kind of bamboo products using the locally available bamboos and processing them with the customized technology. One of his motto is "Make in India with the bamboo." I welcome Mr. Rohit again and request him to address the gathering. Thank you. Thank you very much, sir. Thanks very much for inviting me to the forum. And so I'll just share my screen and quickly get on with the things. So the top, can you hear me also, please? Yes, sir. We can hear you loud and clear. Okay. And is it possible that other people could, some of the people could share the video or something, sir? Their own video so that we can see each other? So this is a webinar session. Okay. It's only broadcast mode at the moment. Fine, sir. Fine, sir. Fine, sir. So, okay. So the topic of today is role of technology and entrepreneurship in development of bamboo sector. And see the what we see is that technology and entrepreneurship. Entrepreneurship here means bamboo entrepreneurship, and technology here means the processing technology. So these two things have very key role in development of bamboo sector, and we see that bamboo sector is still in its making in India, still in, let's say, in the infancy or a little bit higher. So uh, we are there in the role of technology, and we regularly deal with the entrepreneurs. And this will, I'll talk about these two factors in development of bamboo sector. So so the way we will go from here, the roadmap is who we are. We'll talk a little bit about ourselves, and then I'll come to classification of bamboo technology, what the categorization of machine
the overview of important machines. I would have some flowcharts of some of the prominent products. I'll spend very few minutes on all these things, and then how we enhance the value of machines for our customers. Then we'll come to the next part of the presentation, which will be bamboo businesses. What are the available opportunities, and how do we analyze the nearby opportunities for as an entrepreneur for ourselves, and how do we go about doing it? And lastly, I will talk about creating a successful bamboo industry. All the recommendations will be from our own experience, how we have seen the industry for so many years, and what we all of us, all the stakeholders, how we can proceed to make it more successful. So about us, so our company is Anil Enterprises, and we are in existence for about 40 years now. And so we took up bamboo in 2005. And before that, we have been doing heavy equipments, customized heavy equipments and cutting tools also for big companies like BHEL, defense factories. So we had a fair bit good idea about engineering and fabrication, engineering, machine designs, mechanical engineering mostly, and how to control the various functions. So when we entered into bamboo, we were very much fascinated, and day by day, our focus shifted from other products to mainly bamboo machinery. So we have 36 years plus experience in engineering design and development and manufacturing of industrial equipment, and about 15 years in machinery. And we have worked with best of the institutes in the industry like IPIT Bangalore, FRA, Dehradun, NMBA, Tripura Bamboo Missions, MP Bamboo Mission, and so many other bamboo missions, DCDI, Agartala, MBDB, NGOs, DFOs, and also small and big private entrepreneurs. And that has, all this has given us a vast experience and accumulated experience. So any new customer is benefited with this kind of accumulated experience. Currently, we are manufacturing about 25 plus different machinery, but there is no dearth of future developmental opportunities in bamboo industry. So many more machineries could come. So how we categorize this technology is mostly in four parts. So one is primary processing, bamboo treatment plant, secondary processing, and finishing line. So primary processing is all what most of you see: bamboo cutting, splitting, knot removers, slicers, planers, stick making machines, polishers, sharpeners, so many other machines actually. So that is a value addition to a certain level. Bamboo treatment plant, Kulkarni sir has gone into a lot of depth on this, and we have done a lot on building customized equipment in bamboo treatment plants and dryers. So I'll come to this step by step. And then the secondary processing. So when you want to add more value to the product, so it is not just about the primary processes, but secondary processes also, like ply. If you're manufacturing ply, laminates, or if you're creating bamboo blinds, or if you're doing toothpick and then packaging also. So many secondary processes are there which needs to be worked on, but these are this will lead to higher value addition. And then there are finishing lines like UV coating, laminating, etc. So these are some of the primary processing machines, and I will quickly scan through it. A lot of people would know about it. Some are new, so probably they will. I'll give just some idea. So crosscut machine is the most primary machine which any processing should start with, and then there are external knots, outer knot remove करने के लिए. So I'll be talking in Hindi also a little bit here and there. So I think that will be more effective. So external knot will help in removing the outer knots. और यही मशीन हम लोग इंटरनल नॉट रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास इंटरनल नॉट रिमूवर अलग से नहीं है तो. Then there are heavy duty slivers. There are multiple kind of slivers, and each product or each bamboo के साथ में वो स्लाइवर्स का मॉडल चेंज हो जाता है. जैसे अगर हमको लॉन्ग स्लाइवर्स निकालना है नॉट के साथ तो 6 रोलर स्लाइवर यूज करना होगा, और अगर हम लोगों को थिन बिल्कुल पतला हैंडीक्राफ्ट के लिए निकालना है तो थिन स्लाइवर यूज करना होगा. Then there are 3 kind of splitter machines
रेडियल स्प्लिटर विच इज मोर यूनिवर्सल इन नेचर, सब जगह पे आपको रेडियल चेन स्प्लिटर मिलेगा, जिसमें मैन्यूवरिंग इजी है, लेंथ सेटिंग इजी है, और आई थिंक रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव भी है। और दीज आर हेवी मशीन्स, मतलब एक 4 फीट बैम्बू फाड़ने के लिए भी 600-700 किलो का इसमें वजन होगा। और ये हाइड्रोलिक स्प्लिटर है विच कम्स विद द कंट्रोल पैनल, पावर पैक, एवरीथिंग। कोई अगर बहुत हेवी बैम्बू है, जैसे बॉटम पार्ट होता है टुल्डा का या किसी भी बैम्बू का, तो वो बहुत हेवी होता है, तो अगर उसको कंटिन्यूसली स्प्लिट करना है तो आई थिंक हाइड्रोलिक स्प्लिटर इज अ बेटर ऑप्शन। हाइड्रोलिक स्प्लिटर एक रेगुलर स्प्लिटिंग के लिए चेन स्प्लिटर इज अ बेटर ऑप्शन। और लेकिन हाइड्रोलिक स्प्लिटर में बहुत ज्यादा लेंथ में जाना अनइकोनॉमिकल हो जाता है। 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट इज गुड। पैरेलल स्प्लिटर कम्स इन पिक्चर when you want to go for four set planers, अगर स्लैट बनाना है तो। So continuing with the last slide, then there are round stick machines. अभी round stick machines बीच बीच में हम लोगों के डिस्कशन में आएगी, क्योंकि इंडिया में अगर सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड मार्केट है, जिसके मार्केट को एक एंटरप्रेन्योर को ढूंढना नहीं पड़ता है, तो वो है अगरबत्ती स्टिक का मार्केट। बाकी सब मार्केट्स में उसको कुछ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कुछ डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट पैकेजिंग समझना पड़ेगा, सप्लाई चेन्स क्रिएट करनी पड़ेगी, इसलिए ये मार्केट की ज्यादा बात होती है। और इसलिए भी बात होती है क्योंकि ये मास मार्केट है, सब जगह पे मौजूद है, और चाइना ने इसको कैप्चर किया हुआ है, और हम अभी तक उसको रिप्लेस नहीं कर पाए। सो दैट्स अ राउंड स्टिक मशीन, एंड आई हैव सम गुड वीडियोस, अगर टाइम परमिट करेगा तो आई विल शो इट टू यू। फोर सेट प्लेनर्स नाउ स्ट्रांगली कमिंग इनटू पिक्चर, क्योंकि बैम्बू का स्लैट से बहुत कुछ बन सकता है, बहुत सारे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, और वो सब तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक अच्छा फोर साइड का पट्टी आएगा सामने। उसके पहले एक 2 सेट प्लेनर या रफ प्लेनिंग भी लगेगा। एंड देन देयर आर फ्लैटनिंग मशीन्स वेरी स्पेसिफिक टू मेकिंग ऑफ फ्लैटनिंग बोर्ड्स और समथिंग। देन देयर इज टूथपिक लाइन, so you can see that toothpick machine there, bottom में। so that is gaining more traction nowadays, because अगर अगर सिटी में आपको कोई बिजनेस करना है बैम्बू में, तो और आपके पास बैम्बू रिसोर्स नहीं है, तो आप डायरेक्टली स्टिक प्रोक्योर करके सीधा बैम्बू टूथपिक का वैल्यू एडिशन कर सकते हो। so that's how it works. So these are the treatment plants. So this is a very customized equipment, and कस्टमाइज का मतलब ये हो गया कि इसमें लेंथ भी हम अपने हिसाब से वैरी कर सकते हैं, कस्टमर के हिसाब से इसमें डायमीटर्स वैरी कर सकते हैं, उसको कितना प्रोडक्शन चाहिए, और उससे कैपिटल कॉस्ट भी काफी इकोनॉमाइज हो जाती है। दिस इज अ वेरी पोर्टेबल, वेरी हेवी ड्यूटी, रेडी टू यूज इक्विपमेंट, और इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आपको बाद में लेआउट चेंज होता है तो इसको आप शिफ्ट भी कर सकते हैं कहीं पे भी। इसमें सीसीबी, बोरेक्स, अभी कुलकर्णी साहब ने काफी इसको डेप्थ में इसको डिस्कस किया है। ये बहुत इजी टू यूज है, और इट कैन गिव यू गुड प्रेशर्स, गुड वैक्यूम, एंड वी हैव गॉट लॉट ऑफ यूजर्स फॉर पास्ट 12 years नाउ, इंक्लूडिंग बीसीडीआई अगरतला, इंक्लूडिंग मिस्टर विनय कोल्टे इन भोर, एंड लॉट ऑफ अदर्स एक्चुअली। तो ये आप अलग अलग साइज देख रहे हैं, राइट में टॉप हैंड पे ये फर्नीचर के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं, छोटा मॉडल है। Again, four set planer. So these are the dryers. So these are both the photographs are of electrical dryers. It has all the functions in it. But आजकल हम लोगों ने ये नोट किया है कि बैम्बू का तो वेस्ट बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिकल ड्रायर्स देने से ज्यादा अच्छा है बैम्बू वेस्ट के ड्रायर्स को दिया जाए। So now we have started focusing more on bamboo waste dryers, जहाँ पे वेस्ट को हॉट एयर जनरेटर में यूज करके ड्रायर का फ्लो, हॉट एयर का फ्लो दिया जाएगा चेम्बर्स में। So that is more into picture nowadays. But this is good for smaller units. Suppose handicraft products को हमको सुखाना है, तो then this works fine. या slats को सुखाना है तो this works fine. These are smaller machines used for making furnitures. Turning machine, belt and sander. That's a thin sliver machine. That's a broomstick machine. Broomstick भी एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, although it's a low value addition product, जो शायद 20 रुपए किलो से लेके 50 रुपए किलो में बिक जाता है वो प्रोडक्ट, और डिपेंडिंग ऑन क्रॉस सेक्शंस, बट दैट्स अ ह्यूज मार्केट, टनों में लोगों को रिक्वायरमेंट है उसका। That's a bamboo powder machine. So we have developed on it in past 4-5 years slowly, and now you can get the kind of powder you see a picture in the right. So उस तरह का पाउडर अब आपको मिल सकता है 80 मैश, 90 मैश का, और अलग अलग कैपेसिटीज में सप्लाई हो सकती है मशीन।
सबसे बड़ी इंडिया में आप बैम्बू इंडस्ट्री डेवलप क्यों नहीं हो रही है, या लेट से उतना सक्सेस रेट उतना क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एक तो बैम्बू की अवेलेबिलिटी, जिसकी मैं बात करूंगा आगे, और दूसरा, एक बार बैम्बू आया तो उसका 30-40% डिजायरेबल पार्टी होता है एक कस्टमर के पास। रेस्ट ऑफ इट, अगर क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच से काम हुआ है, जहां उसके अनवांटेड पोर्शंस दूसरे के लिए असेट हो जाए, अ लायबिलिटी ऑफ वन पर्सन बिकम्स एन असेट फॉर अनदर पर्सन, देन इट्स वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं है, देन अगर सपोज आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं 200-300 किलोमीटर में कोई भी और फैक्ट्री नहीं है, अब आप ही को उस बैम्बू को पूरा यूटिलाइज करना है, देन इट बिकम्स अ बिग चैलेंज। तो उसमें एटलीस्ट प्रोसेसिंग के बाद जो वेस्ट निकलता है उसको यूज करने का एक ये बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन है टू मेक फाइन पाउडर। बट ये भी, इस पे भी चैलेंजेस है। मार्केट इसका डेवलप करना पड़ेगा थोड़ा, और थोड़ा अगरबत्ती के की प्लेयर्स को, अगरबत्ती मिशन को भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि दे नीड टू अडॉप्ट दिस पाउडर फॉर इंसेंस मेकिंग पर्टिकुलरली। Anyway, we'll come to it with the questions. Now, these are some of the flowcharts. I don't know if this will make interest or not. So, like राउंड स्टिक मशीन है, राउंड स्टिक बनाना है तो क्या फ्लो रहेगा? ब्रॉड फ्लो रहेगा मशीन्स का। विल डू द क्रॉस कटिंग, देन मैनुअल स्प्लिटिंग, स्लाइसिंग, राउंड स्टिक मेकिंग, साइजिंग, ड्राइंग, पॉलिशिंग, सॉर्टिंग एंड पैकिंग। इसमें एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि अभी अभी जब से गवर्नमेंट ने 25% ड्यूटी कर दिया है, कस्टम ड्यूटी, तब से सिटीज में भी अब राउंड स्टिक मशीन्स लोगों ने अब डालना शुरू कर दिया है। और उसका अब नया मॉडल इवॉल्व हो रहा है कि प्री प्रोसेस्ड बैम्बू स्प्लिट्स नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, और वो डायरेक्टली किस एक पर्टिकुलर प्राइस पे ट्रक लोड होके आते हैं, और रेस्ट ऑफ इंडिया में वो यूज हो सकते हैं। उसमें चैलेंजेस उसमें भी है। चैलेंजेस उसमें ये है कि आने में मॉइस्चर लॉस होता है, फंगस भी लगता है, और आने के बाद वो कितने दिन में यूटिलाइज होता है। तो वो बैम्बू में हर चीज का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें उसको यूज करना है। वो बैम्बू कटने के बाद शायद 3 या 4 हफ्ते के अंदर टोटली फाइनल प्रोडक्ट बन जाना चाहिए ड्राई होके, अदरवाइज देन दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस कम। बट एनीवे, दैट मॉडल नीड्स टू इवॉल्व फर्दर in India. Now, so this is a process flow chart for making long sticks. अगर हम लोग देखिए, स्टिक्स का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है इंडिया में। इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे तो इंसेंस मार्केट अपने आप में स्ट्रांग है। अगर अगरबत्ती का मार्केट है तो 6-7-8 हजार करोड़ रुपए का है, लेकिन उसमें बैम्बू स्टिक्स का मार्केट शायद 600-700 करोड़ का है। ठीक है, 600 to 700 crores. अपार्ट फ्रॉम दैट, 2 mm स्टिक, 3 mm स्टिक, 5 mm स्टिक, ये सबका अपने आप में बड़ा मार्केट है। तो इसमें से कुछ मार्केट डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। सिमिलरली बैम्बू ब्लाइंड्स का बहुत बड़ा मार्केट है, शायद अनटैप्ड मार्केट है, क्योंकि इतना बन नहीं रहा है, लेकिन वो बनाना पड़ेगा। और क्योंकि हमको अर्बन मार्केट अगर टैप करना है और बैम्बू से ज्यादा वैल्यू एडिशन निकालना है, तो वो उस मार्केट को बनाना पड़ेगा। उस तरह की स्टिक्स अगर बनानी है तो उसका प्रोसेस डिफरेंट है अगरबत्ती स्टिक्स से, एंड दैट्स व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर। सो वी हैव टू यूज द नॉट पोर्शंस एंड वी हैव टू मेक इट, एंड राउंड स्टिक मॉडल्स विल बी डिफरेंट। अगेन, अब ब्रूम स्टिक मेकिंग का ये एक फ्लो चार्ट है। then we'll come to thin slivers. Now, thin sliver is a very important raw material for artisans. ये भी अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक हमारे लिए। आप आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ मैं कि एक अच्छे मशीन मैन्युफैक्चरर के लिए एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बहुत जरूरी है। अगर एक एंटरप्रेन्योर, अगर मैं मशीन्स बहुत अच्छी दूंगा, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर उसको मेहनत से यूज नहीं करेगा, तो मेरे पास फीडबैक भी नहीं आएगा, और उसमें फर्दर डेवलपमेंट का भी चांस नहीं रहेगा, और प्रोसेसेस भी फाइनलाइज नहीं हो पाते। तो थिन स्लाइवर एक ऐसा एरिया है जहाँ बास्केटरी इंडिया में इतना ज्यादा होता है, आर्टिसंस के पास इतना अच्छा हुनर है, स्किल है, लेकिन वो पूरा हाथ से शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा हैंड से स्लाइवरिंग करते हैं, एंड दे वेस्ट देयर टैलेंट इन मेकिंग दोस स्लाइवर्स। और उनको मशीन से बना करके उसको वीविंग में अपना वैल्यू एडिशन करना चाहिए। नाउ जब तक कुछ कस्टमर्स इस पर डेडिकेटेडली काम नहीं करेंगे, विल नॉट नो कि एग्जैक्टली जो वो मैनुअली स्लाइवर करते हैं और वो जो मशीन से पाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस। सो हियर आई वांट टू एम्फसाइज दैट एज अ मशीन मैन्युफैक्चरर वी ऑलवेज लुक फॉर वेरी सीरियस काइंड ऑफ, सिंसियर काइंड ऑफ कस्टमर्स, जो उसको अच्छे से यूज करें, एंड दे कम टू अस विद द फीडबैक, एंड देन देयर इज अ टू एंड फ्रो प्रोसेस ऑलवेज। So this is one. Now, 4 side planed slats.
अब इसका मार्केट बहुत बढ़ता जा रहा है। इंडिया में टूथब्रश की बहुत बात होती है और टूथब्रश एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। सिमिलरली बैम्बू के जो लेमिनेटेड फर्नीचर बनना है, आप अगर स्लैट्स अच्छा बनाएंगे तो शायद कहीं पे भी इंटीरियर में यूज होगा। जैसे बैंगलोर में एयरपोर्ट आ रहा है, तो आई एम इवन दो विदाउट नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि डेफिनेटली स्लैट्स का पूरी जगह यूज होगा और पूरा कुछ इंपोर्टेड है। तो इंडिया में इतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, पर कोई भी उसको यूटिलाइज किए बगैर बाहर से सामान आ रहा है। तो ये स्लैट को डेवलप होना बहुत जरूरी है। अब ये सब डेवलप इतनी जल्दी क्यों नहीं होता है इंडिया में? इसका कारण ये है कि बैम्बू की अवेलेबिलिटी हर एक आदमी को हर एक जगह पे नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट एक अच्छी बैम्बू स्पीशीज का बहुत बड़ा हब है। और वहां से लेकिन सेग्रीगेशन होके प्रॉपर सप्लाई चेन्स में जब मटेरियल मिलेगा और वो अवेलेबल होगा, तो ये इंडस्ट्रीज पॉसिबल होगी। अगर बैम्बू का बॉटम पोर्शन जो एक स्टिक इंडस्ट्री के लिए लायबिलिटी है, लेकिन वो स्लैट इंडस्ट्री के लिए वो असेट है। सो आई ऑलवेज टेल माय ऑल द राउंड शिप कस्टमर्स आल्सो कि वो नीचे का जो 4 फीट 5 फीट का आपका पोर्शन है बैम्बू का, उसको बचा के रखिए। उसके लिए आप स्लैट का कस्टमर ढूंढिए, यू गेट अ प्रीमियम आल्सो एंड लायबिलिटी से भी बाहर आ जाओगे। सो स्लैट इज अ वेरी प्रोमिनेंट प्रोडक्ट। नाउ राउंड बैम्बू फर्नीचर का बिजनेस कोई भी किसी भी सिटी में चालू कर सकता है, एंड दैट रिक्वायर्स वेरी स्मॉल मशीन्स एंड बट ऑफ कोर्स यू शुड हैव ट्रीटमेंट प्लांट, जो आखिरी में मैंने नोट कराया है। Otherwise, these are all small machines, not very expensive also. Now, till now, any questions, please, so that I can move forward. Machines for extracting curls from thick. Okay, so I'll these are all related to harvesting. I'll come to it later. Actually, harvesting पे इतना मशीनरी पे इतना काम भी नहीं हुआ है, हम लोगों का वो फोकस एरिया बना भी नहीं। Anyway, I'll move forward. So, how we enhance the value of our machines? So incorporate the feedback of our customers on continuous basis. Now this is our best resource. अगर कस्टमर मशीन्स को प्रॉपरली यूज करेंगे और उसके साथ फीडबैक के साथ आएंगे, तभी हमारा लर्निंग होता है, तभी हमारा R&D, वही हमारे लिए R&D का लैब बनता है। क्योंकि वी ट्राई आवर बेस्ट टू मैन्युफैक्चर अ मशीन इन अ प्रॉपर वे, बेस्ट डिजाइन, बेस्ट इंजीनियरिंग वाइज। उसमें जो अलॉय स्टील्स यूज होना है, 3 डायमेंशनल ड्राइंग्स होनी है, उसमें ट्रायल्स होना है इन हाउस, उसमें कटिंग टूल्स यूज होना है, वो सब हम लोग करेंगे। बट उसका एक रियल उसका परफॉर्मेंस होता है ग्राउंड के ऊपर। तो जब कस्टमर्स उसको अच्छे से यूज करते हैं, देन वी गेट द राइट फीडबैक। अब हमारा ऐसा बहुत सारी मशीन्स के साथ हुआ है, जैसे राउंड स्टिक मशीन्स है, वी हैव डेवलप्ड इट वेरी वेल। बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, एंड सिंपल मशीन्स तो वो सब वेल डेवलप्ड हो ही गई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देयर आर मेनी मशीन्स जिनको अभी एंटरप्रेन्योर्स अच्छे से अडॉप्ट करेंगे, लाइक टूथपिक मशीन है। अभी टूथपिक मशीन तो बहुत अच्छे से बना दिया, लेकिन उसके बाद अभी हम लोग अब अच्छा हार्ड वर्किंग एंटरप्रेन्योर भी साथ में ढूंढ रहे हैं, सो दैट वी गेट अ प्रॉपर फीडबैक कि उसमें प्रोडक्शन कितना आता है। आज हमसे कोई पूछता है टूथपिक का 8 घंटे में प्रोडक्शन कितना आएगा, एंड नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर बिकॉज इवन वी हैव नॉट गॉट द करेक्ट फिगर्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। So these feedbacks and these continuous efforts on design and manufacturing gives us so उसके साथ हम लोग functional value machine का improve करते हैं, उसकी productivity पे काम करते हैं, finishing quality product का अच्छा आना चाहिए, precision आना चाहिए, consistency आना चाहिए, reliability आना चाहिए, machines की maintenance free होना चाहिए। Okay, and ये सब होने में एक ट्रेनिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है। Okay, so what are the so now moving on, what are the business opportunities available for the entrepreneurs today in bamboo? देखिए बैम्बू में आप जिधर सोचेंगे ना उधर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। लेकिन देखिए बेसिक फ्लो चार्ट तो मैंने आपको दिखाया है, स्टिक्स का, स्लाइवर्स का, राउंड बैम्बू फर्नीचर का, एंड आप भी ये सब जानते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में सोचेंगे तो आप देखेंगे बैम्बू बैग्स का अर्बन मार्केट, बैम्बू बैग्स का बहुत बड़ा मार्केट है, टॉयज का मार्केट है, लैंप्स का मार्केट है। लेकिन यहाँ सब प्रोडक्ट की डिजाइन भी इंपॉर्टेंट है, साथ में मशीनरी मैन्युफैक्चरर के साथ काम करके करना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप बहुत सारे रिपीटेटिव प्रोसेस को मैकेनाइज कर सको। बैम्बू ब्लाइंड्स अर्बन मार्केट में बहुत ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है। टूथपिक्स, स्कीवर्स, कॉफी स्टीरर्स, स्ट्रॉज, फ्लोरिंग बोर्ड्स, laminates, knockdown furniture. So these are the products of urban market, जहाँ आप ज्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हो, ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो, और रॉ मटेरियल कॉस्टली होने से भी आपका बिजनेस में प्रॉफिट आ सकता है और अच्छे से आ सकता है।
Similarly, charcoal is coming up in a big way. इसमें एक रेगुलर चारकोल है, बायोचार पे बहुत काम हो रहा है। बैम्बू पाउडर की मैंने अभी बात की, क्योंकि उसको अगरबत्ती इंडस्ट्री में की प्लेयर्स को अडॉप्ट भी करना पड़ेगा। ब्रिकेट्स जो जिसको व्हाइट कोल बोलते हैं, ये कई जगहों पे, कुछ जगहों पे सक्सेसफुल है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होता है पर आवर बेसिस पे। तो अगर आपके पास इतना बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पे 400-500 किलो वेस्ट हर घंटे निकलता है, देन ब्रिकेट इज possibly a good way of salvaging your waste. Okay, moving on. So how to analyze a nearby, let's say, bamboo business opportunity for different people in different areas. India इतना vast है, इतने सारे लोग हैं, अलग अलग स्टेट से, लोकल कंडीशंस हर जगह अलग अलग है। तो हम लोगों को सबसे पहले जो भी एक बिजनेस करना चाहता है, उसे एक बार समझना चाहिए कि अपना प्रोडक्ट डिफाइन करें कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारे कस्टमर्स कौन है, पर हम उस सप्लाई चेन में कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि बैम्बू स्टिक इंडस्ट्री में हमको मालूम होना चाहिए कि इसके बाद रॉ बत्ती बनना है, रॉ बत्ती के कस्टमर को क्या क्वालिटी चाहिए, तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमको अपने कस्टमर्स को डिफाइन करना पड़ेगा और क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि उसके वैल्यू एडिशंस को हम डिफाइन कर पाए। इंडस्ट्री का एनालिसिस हमारे पास होना चाहिए। यहाँ तक कि इतने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होने से भी इंडिया में अगर आप इंडस्ट्री का एनालिसिस पूछेंगे तो शायद वो मिसिंग है। ये एक हमारा शायद ड्रॉबैक है पूरे सिस्टम का, कि हमारे पास बहुत सारी चीजें मिसिंग है। तो इंडस्ट्री का एनालिसिस अगर कोई रेडीमेड नॉलेज लेना चाहता है तो उसको मिलेगा नहीं। ये सारी हेल्प एक्चुअली मशीन मैन्युफैक्चरर ही करता है एक नए बिजनेसमैन के साथ, नए एंटरप्रेन्योर के साथ। कोई भी अगर एक इंटरेस्ट लेता है फील्ड में तो उसको फोन करता है, फोन करेगा तो ये सारी चीजें ही डिस्कस उससे करनी पड़ती है, सो दैट वी ब्रिंग हिम टू द राइट डिसीजन। उसको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज। जैसे किसी किसी का स्ट्रेंथ होता है कि वो लेबर में अच्छा डीलिंग कर सकता है, उसके पास लेबर चीप है, उसके पास इंडस्ट्री का सेटअप है, तो इसका स्ट्रेंथ हो गया। उसका वीकनेस हो सकता है कि वो बैम्बू के रिसोर्स से बहुत दूर है। तो उसका है ये पूरा शॉर्ट एनालिसिस करना होता है, उसके कॉम्पिटेंसीज डिफाइन करने पड़ते हैं। तो इसकी कॉम्पिटेंसीज क्या है, उससे उससे हम उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एनालाइज कर पाएंगे। क्या इन्वेस्टमेंट लगना है। अब छोटा कस्टमर है जिसके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो राउंड स्टिक में जाने के लिए हम उसको कभी सजेस्ट नहीं करते। और उसको अगर कोई आर्टिजन प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं तो फर्नीचर में भी जाने के लिए कभी सजेस्ट नहीं करेंगे। उसको बोलेंगे कि और छोटे स्केल पे कोई, क्योंकि राउंड स्टिक बिजनेस शुरू में दिखता है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट मांगेगा, बट देन इट रिक्वायर्स अ फेयर बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करनी होती है उनके साथ में, कॉस्ट कंपोनेंट्स की बात करनी होती है, बैम्बू, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी। उनको एक फॉर्मूला देना होता है कि आफ्टर ऑल वो अपना कॉस्ट कैसे एनालिसिस करेंगे, ताकि ताकि दे रीच टू सम कंक्लूजन, इवन दो वी कैन नॉट गिव देम अ परफेक्ट फिगर्स, बट इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, सो दैट्स हाउ यू एनालाइज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इतने सारे जो अपॉर्चुनिटीज है बिजनेसेस के, उसको इसके साथ, अगर कोई सपोज प्रोडक्ट डिजाइन से, एनआईडी से काम किया हुआ है, तो उनको डेफिनेटली टॉयज, लैम्प्स, इनके ऊपर काम करना ज्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ अगरबत्ती स्टिक्स। ऐसा हुआ है पहले भी कि जो आर्किटेक्ट है उन्होंने अगरबत्ती स्टिक्स में मेरे को इंटरेस्ट दिखाया, एंड आई हैव टोल्ड देम दैट आपका वैल्यू एडिशन तो दूसरी जगह लाया करता है, आपको इसमें नहीं जाना चाहिए। So that's how we try to analyze the business opportunities and help them out with that. So how to create maximum value out of bamboo? Now, अभी मैंने क्लस्टर अप्रोच की बात की थी। वो क्यों की थी? वो इसलिए की थी कि बैम्बू एक रॉ मटेरियल जो है वो एक कंसिस्टेंट नहीं है। इवन एक बैम्बू भी हम देखेंगे जो 30 फीट का है, 20 फीट का होता है, तो बॉटम पोर्शन का अलग प्रॉपर्टीज है, मिडिल पोर्शन का अलग प्रॉपर्टी है, टॉप पोर्शन का अलग प्रॉपर्टी है। बाहर की लेयर बहुत डेंस होती है, उसके फाइबर्स पास पास होते हैं, अंदर की लेयर बहुत स्पॉन्जी होती है। तो हर एक जगह प्रॉपर्टी का अंतर है, तो उसको वैल्यू एडिशन पूरे बैम्बू को मैक्सिमम वैल्यू में कैसे डालना है। सपोज अ कस्टमर हु कम्स फ्रॉम अ गुड प्राइवेट यूनिट, और जो अफोर्ड कर सकता है 3-4 वर्टिकल में काम करना, देन आई विल एडवाइज इन कि बॉटम पोर्शन शुड गो इन स्लैट फॉर, और वो स्लैट या तो फर्नीचर इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर दो या आप ही उसमें वैल्यू एडिशन कर लो। मिडिल पार्ट शुड गो इन स्टिक इंडस्ट्री। स्टिक इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बैम्बू स्टिक इंसेंस के लिए। वो चैलेंज ये है कि बाहर की 1 या 2 लेयर्स तो अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टिक देती है, बट अंदर की लेयर्स वीक पड़ जाती है। तो अंदर की लेयर्स को मोटा वाला स्टिक बनना चाहिए, 3 mm 5 mm। लेकिन उसका मार्केट अभी इतना डेवलप नहीं है कि सब लोग अगर करने लगेंगे तो सबको मार्केट मिल जाएगा। लेकिन जैसे कुल्फी स्टिक्स में अमूल इज यूजिंग 5 mm डायमीटर स्टिक फॉर कुल्फी। बैम्बू ब्लाइंड्स में जाएगा, स्कीवर्स में जाएगा, टूथपिक्स में जाएगा, लेकिन वो फिर आपको वो पूरा वर्टिकल होना है आपके पास।
और अगर इमेच्योर बैम्बू, अभी कोई भी बैम्बू का ट्रक आप बुलाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सारा मैच्योर बैम्बू आपको आ जाएगा, उतना सेग्रीगेशन ही नहीं है प्लांटेशन लेवल पे। इमेच्योर बैम्बू अगर आता है तो आप उसको हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। और जितना भी वेस्ट है आप उसको चारकोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और चारकोल ट्रेडिशनल मेथड से बना सकते हैं अगर आप रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं, और बैम्बू पाउडर इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। उसमें ज्यादा अच्छा वैल्यू एडिशन है, लेकिन उसका जो मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम है वो थोड़ा कम होगा, और थोड़ा उसमें मार्केटिंग इन्वॉल्व है। अवर रोल एज अ मशीन मैन्युफैक्चरिंग इन क्रिएटिंग सक्सेस स्टोरीज। मशीन मैन्युफैक्चरर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब एक एंटरप्रेन्योर निकलता है मार्केट में तो उसको किसी और को, कोई और उसको एडवाइस देने वाला होता नहीं, कोई कोई ऐसे कंसल्टेंट्स तो है नहीं इंडस्ट्री में। एंड वी आर लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंट्स फॉर ऑल द पीपल। कुछ कन्वर्ट होंगे कुछ नहीं होंगे, दैट्स गुड इनफ, नो प्रॉब्लम, बट वो कंसल्टेंसी बहुत जरूरी होती है, अदरवाइज वी विल एंड अप सेलिंग रॉन्ग मशीन्स टू रॉन्ग पीपल एंड इंडस्ट्री विल गो हेवायर। तो प्राइमरी स्क्रीनिंग हम करते हैं हर एक कस्टमर के साथ बैम्बू सोर्सिंग के लिए। उसके पास स्पेस कितना है, कैपिटल कितना है, उसको एक फैक्ट्री चलाने का कितना कैपेबिलिटी है। अनफॉर्चुनेटली जो एक स्टिक इंडस्ट्री भी डालना चाहता है तो हमको लगता है अरे स्टिक में क्या है, पर आप सोचेंगे तो स्टिक में बहुत कुछ है। पूरा पूरा वो प्रिसीशन प्रोडक्ट है, 1.3 mm राउंड डायमीटर, उसका फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लेआउट, उसके उसके उसमें लेबर इंटेंसिव भी होती है मशीन होने के बाद भी, उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस, उसके 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 मटेरियल फ्लो, उसमें एफिशिएंसीज लाना। तो इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कैपेबिलिटी टू रन अ फैक्ट्री, एनी फैक्ट्री इंक्लूडिंग द स्टिक बिजनेस। और उसको राइट प्रोसेसेस पे काम करना ही पड़ेगा। और राइट प्रोसेसेस बिल्कुल बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ के डिफाइन कर देंगे। ही हैज टू क्रिएट हिज ओन प्रोसेसेस। एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं मशीन ऑपरेट करने के लिए, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उसको मेंटेनेंस ना आए। that's where we try to do things. We try to do site visits as and when possible, try to bring focus back to the critical parts of the business. Businessman कई बार भटक जाता है, he focuses on so many other things which are not critical to his business, or let's say business revenues. And then we as per discussion we regularly try to bring his focus main to the critical parts, back to the critical parts. Constant endeavor to understand our customer requirement, and we are always available for discussion, troubleshooting, etc. So what are the key requirements in success in bamboo industry? तो इसमें एक बात देखने के लिए कि कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर काम करना चाहता है तो मेरा ऐसा सुझाव है कि उसको अपने हैंड्स ऑन होना चाहिए, उसको अपना हाथ गंदे करने में शर्म नहीं होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर अगर अपना एसी रूम से बाहर नहीं आ सकता है और उसको लगता है कि इंडस्ट्री को अपने आप प्रोसेस, तो ये बैम्बू इंडस्ट्री वैसा नहीं है। यू हैव टू गेट एंगेज योरसेल्फ, क्योंकि आपको अपने से ज्यादा होशियार आदमी आपकी छोटी कंपनी में नहीं मिलता है। यू आर द बेस्ट पर्सन इन दैट इंडस्ट्री, और उसको अगर आप नहीं समझेंगे उस पूरे प्रोसेस को, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को, मशीनरी को, तो आप उसमें फिर सक्सेस नहीं पा सकते। इसलिए एनी एंटरप्रेन्योर हु इज रेडी टू डर्टी हिज हैंड्स, यू शुड हैव पैशन फॉर बैम्बू। बैम्बू में कई बार डे वन पे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, कितने हार्ड वर्किंग हो, फिर भी बैम्बू को समझने में बहुत टाइम लगता है। So you should have passion to do it finally. Understand your material. You should have a good observation. बैम्बू कभी मॉइस्चर है, कभी सूखा है, मशीन पे कैसे परफॉर्म करता है, उसकी नॉट कैसे आ रही है, मेच्योर्ड बैम्बू आ रहा है क्या, उसका फाइनल रिजल्ट कैसा बन रहा है। आपको अपने खुद के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कंपनी में क्रिएट करने पड़ेंगे। आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस इनोवेशन इन प्रोड्यूसिंग द फाइनल प्रोडक्ट, आपको प्रोसेस इनोवेट करना पड़ेगा। मतलब मटेरियल कैसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कटिंग भी करना है, स्प्लिटिंग भी करना है, स्लाइसिंग भी करना है, यहाँ तो क्लियर कट है। लेकिन एक बार राउंड स्टिक बनाया तो उसको पॉलिश पहले करेंगे कि साइजिंग पहले करेंगे, उसको उसको सॉर्टिंग कब करेंगे और कितनी बार करेंगे, उसको सल्फर ट्रीटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको ब्लैंचिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। सो देर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच आर इन्वॉल्व। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस इनोवेशन करना पड़ेगा। आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट देते हो, देखते हो कि उसके मशीन पे कैसे चल रहा है, मतलब रॉबत्ती की मशीन पे कैसे चल रहा है, उसके फीडबैक के बेसिस पे आप फिर से चेंजेस लाते हो। सो यू शुड हैव एपेटाइट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। So anybody who has some appetite for experimentation, he will be a preferred entrepreneur in bamboo business. And then efficiency and effectiveness mindset, क्योंकि आपको efficiency लानी है। bamboo is a material जिसको अच्छा yield प्राप्त करना है आपको, और
और सिस्टम में कम कॉस्टिंग में काम करना है, तभी तभी प्रॉफिट्स पॉसिबल होंगे। इसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस माइंडसेट होना चाहिए एक बिजनेसमैन का। Now I have some recommendation for government and research institutes. Now everything is based on personal experience. Okay, so for we are working in bamboo industry for 15 years और जो ऑब्जर्व किया उसके बेस पे है। तो एक तो फर्स्ट पॉइंट इज डोंट ट्रीट बैम्बू एज अ बायोमास बट फॉर द वैल्यू। तो बैम्बू को बायोमास की तरह मत ट्रीट कीजिए। इसमें इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा कि कोई भी स्पीशीज कोई आप लोग लगाते हैं, फार्मर्स लगाते हैं, बिजनेसमैन अपने पास उनके पास 40 एकड़ 20 एकड़ जमीन होती है, उसके ऊपर वो प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो यू शुड हैव योर एंड इन द माइंड कि आखिर मैं उस बैम्बू का क्या करूंगा। आपको अगर बायोमास क्रिएट करना है तो एक डिफरेंट बैम्बू है, अगर आपको वैल्यू एडिशन करना है तो कौन से वैल्यू एडिशन पे कौन सा बैम्बू इस पर काम करना है। अगेन यहाँ पे मैं वही बात करूंगा जो पहले किया कि अभी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में, मालूम नहीं कितने ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इतना कोई प्रॉपर स्टडी नहीं है कि कौन सा बैम्बू कौन सा वैल्यू एडिशन के लिए बेटर है। So we always tell our customers about whatever knowledge we have, but that is something we finally need to do it कि एक डॉक्यूमेंटेशन हो कि हाँ ये बैम्बू है। बैम्बू प्लांटेशन में भी इतना सारा उसका टेक्नोलॉजी है, जीरो जीरो उसका जीरो लाइफ एंड ऑल एंड टिश्यू कल्चर कि दैट दैट डिस्टर्ब्स द होल साइकिल। आगे चल के ये मालूम नहीं होता है कि बंदे को कंसिस्टेंट रॉ मटेरियल मिलेगा कि नहीं। Anyway, reducing taxation on bamboo machines. Now देखिए 18% टैक्स है इस समय बैम्बू मशीनरी पे। कॉर्पोरेट के लिए इट्स फाइन क्योंकि वो बाद में सेट ऑफ ले लेगा, लेकिन अगर एक आर्टिजन को 2 मशीन छोटा सा चाहिए तो उसको उसको 18% टैक्स बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब वो अगर 40,000 का एक मशीन खरीदता है तो सिर्फ 10,000 वो उसके ऊपर 10 नहीं तो 8,000 जैसा उसके ऊपर वो टैक्स दे देता है, उसको कभी सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना होगा कि इसके लिए कैसे करें। not reducing taxation for the sake of it, that's not our demand, but keeping them in mind। इंडिया में क्या ट्राइबल पॉपुलेशन कम है क्या, आर्टिजन की पॉपुलेशन कम है क्या? वो पूरा मार्केट तो अभी अनटैप्ड ही पड़ा है, उनको तो कोई टेक्नोलॉजी अभी तक पहुंची ही नहीं है वहां। तो हमको उस बारे में भी सोचना होगा। प्रमोट प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स नियर बैम्बू सोर्स। बैम्बू सोर्स अभी सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि राउंड बैम्बू को आप पूरे इंडिया में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, आपको उसको थोड़ा प्री प्रोसेसिंग करना होगा। और प्री प्रोसेसिंग करने के लिए बेसिक मशीनरी सोर्स के पास देनी होगी, ट्रक भी जल्दी भरना चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी जल्दी होना चाहिए और जल्दी वहाँ एंटरप्रेन्योर के पास पहुंच के प्रोसेसिंग होना चाहिए, नहीं तो रास्ते में और वहाँ पहुंचते पहुंचते और उसके पास पहुंचने के बाद बैम्बू खराब होगा। तो ये पूरा सप्लाई चेन जब तक नहीं बनेगा ये बहुत हम लोग आसानी से इसमें सक्सेस नहीं होंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ बेसिक रिजल्ट जरूर होंगे। जब इंडिया में अभी तक ये इंडस्ट्री हम लोग 20 साल से बात कर रहे हैं कि हाँ बहुत अपकमिंग है, लेकिन वो अपकमिंग ही है, वो उतना पूरा 100% सक्सेस नहीं हुई है। क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच, जैसे मैं अभी आपको कह ही रहा था कि लायबिलिटी एक इंडस्ट्री की है, दूसरे के लिए असेट है। आसपास अगर एक क्लस्टर होगा, जैसे सपोज 5-6 तरह की इंडस्ट्री एक एरिया में ऑपरेट करती है तो बहुत अच्छा होगा, सबके लिए बेनिफिशियल है। वो बॉटम पोर्शन उसके पास चले जाएगा, वेस्ट शायद एक पल्वराइजर किसी ने डाल के रखा है, ब्रिकेटिंग यूनिट डाल के रखी है, तो सबका वेस्ट वो ले लेगा। तो क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच के साथ अगर गवर्नमेंट काम करे यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। Now, establishment of quality parameters and testing methods of input material as well as output material. Now, make these available in regular testing labs of states. क्वालिटी पैरामीटर्स डिफाइन होना है हर एक प्रोडक्ट के पहले, तो प्रोडक्ट डिफाइन होना है, क्वालिटी पैरामीटर्स डिफाइन होना है, उसके टेस्टिंग के तरीके डिफाइन होना है, और एक एंटरप्रेन्योर को आसानी से अगर टेस्ट करवाना है लेबोरेटरीज में तो अवेलेबल होना चाहिए। सेपरेट लेबोरेटरीज सिर्फ बैम्बू टेस्टिंग के लिए देंगे तो वो इंडिया में 1-2 तो हो सकती है, अदरवाइज वो बंद हो जाएगी, उस फिजिबिलिटी नहीं आएगी, इतने लोग नहीं आएंगे। तो अभी रेगुलर लेबोरेटरीज में कुछ वो इंक्लूड करना चाहिए उस चीज, उस तरह की चीजें। स्पेसिफिक बैम्बू ITI कोर्सेज हो, छोटे कोर्सेज हो। अभी कोई भी मशीनरी डालता है इंडिया में, उसके उसके पास एक भी ट्रेंड आदमी उसको नहीं मिलता है काम करने में। वो भी एक हमारे पे जिम्मेदारी आती है कि नहीं यार आप अपने बंदे दो, उसको हम ट्रेन करते हैं, या आपका एक मेन सुपरवाइजर दो, हम उसको ट्रेन करेंगे, फिर वो उसको ट्रेन करेगा। वो बिल्कुल ABCD से शुरू होते, बिल्कुल अनट्रेंड लेवल से शुरू होते। छोटे कोर्सेज हम बना सकते हैं जो बैम्बू में काम करे। नॉर्थ ईस्ट के लिए तो स्पेसिफिकली ये होना ही चाहिए, सो दैट दे आर वेल अवेयर अबाउट द मशीन्स, कैसे काम होता है, कटर्स कैसे काम करते हैं, मशीन्स क्या करती है, so that वो ready to use resource हो इंडस्ट्री के लिए। Establishment of ideal species for particular application, I have spoken about this.
approach towards bamboo business as a social enterprise for 5 years, for few years. Bamboo business में जो सरकार चाहती है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का, उसमें जबरदस्त पॉसिबिलिटी है। सबको तो आप इंश्योरेंस में और कॉल सेंटर पे नौकरी नहीं दे सकते, बैंकिंग में नौकरी नहीं दे सकते। गांव वाले लोगों के लिए, ट्राइबल्स के लिए क्या करेंगे, आर्टिजन्स के लिए क्या करेंगे? बैम्बू बिजनेसेस को एक सोशल एंटरप्राइज की तरह गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, पर रिजल्ट ओरिएंटेड भी होना पड़ेगा। हर एक स्टेट के पास 5 ईयर का एक विजन होना है कि बैम्बू में उनको क्या डेवलपमेंट करना है, क्या टारगेट है। लाइक वो आफ्टर ऑल 5 इयर्स में क्या अचीव करना चाहते हैं। दे शुड हैव समथिंग इन माइंड कि मेरे को एटलीस्ट मेरे स्टेट में 6 अच्छी फैक्ट्रीज चलनी चाहिए जिसका टर्नओवर 2 करोड़ जैसा होना चाहिए पर ईयर का। इतना एक छोटा टारगेट तो लिया जा सकता है, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। कुछ एक बैम्बू डिफाइंड विजन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए होना चाहिए हर एक स्टेट के पास और नेशनल लेवल पे। हैव रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला बात मैंने टीबीएम में, त्रिपुरा बैम्बू मिशन में बहुत सालों से देखा है। जो कुमारघाट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप किया हुआ है उन्होंने अगरबत्ती का, और मैंने उसमें ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज के जो हेड थे वही बैम्बू मिशन के भी हेड थे, शायद इसलिए आसान होगा उनके लिए। तो वहाँ पे एक रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें टोटली रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने मशीन इनकलकेट किया पूरा इंडिया में जो बेस्ट पॉसिबल सोर्स है वहां से समझ के लिया और डायरेक्टली उन्होंने हायर पे दे दिया एंटरप्रेन्योर को। तो जो काम करना चाहता है बैम्बू में, उसको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आई, उसको फैक्ट्री नहीं बनाना है, उसको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लाना है, मशीनरी भी प्रोक्योर नहीं करना है, उसको डायरेक्टली रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर मिला और उन्होंने सीधे काम पे लग गए। वही वही मॉडल मेरे को लगता है गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। गवर्नमेंट को इंडस्ट्री क्लस्टर सेटअप करना चाहिए जहां पे हायर पे, रेंट पे फैक्ट्रीज अवेलेबल हो, क्योंकि आज एक बिजनेसमैन जब बैम्बू में बिजनेस में काम करने जाता है, उसको ठीक ठाक कुछ करना है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में मालूम नहीं कितना पैसा लग जाता है। तो वो अवॉइड तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट के पास विजन हो, एक क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने फैक्ट्रीज रेडी करके रखे। और मशीन मैन्युफैक्चरर को हो सकता है एंटरप्रेन्योर अप्रोच कर ले, हर बार गवर्नमेंट ना भी ले, लेकिन बाकी चीज रेडी होना चाहिए। ये एक अप्रोच मेरे को लगता है इंडिया में एसएमई सेक्टर को मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्ट मशीन मैन्युफैक्चरर, ये देखिए, सपोर्ट मशीन मैन्युफैक्चरर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सुपर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज। गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि वही मशीन चाइना से आंध्र प्रदेश में भी खरीद लेंगे, गुवाहाटी में भी खरीद लेंगे, महाराष्ट्र में भी खरीद लेंगे, एमपी में भी, ऐसा नहीं है। आप मशीन मैन्युफैक्चरर को एंगेज करो, उसको दीजिए ये टेक्नोलॉजीज, आप उनको दीजिए, उनके साथ कुछ एमओयू बना लीजिए। बट वो फ्यूचर एक बार उनके हाथ में आएगा तो आपकी आगे की टेक्नोलॉजीज क्रिएट होगी। आपको एंटरप्रेन्योर जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगेगा तो मशीन मैन्युफैक्चरर उसको हर तरह की इंफॉर्मेशन दे पाएगा, टेक्नोलॉजी भी सप्लाई कर पाएगा। अगर वो एक एंगल के साथ काम किया तो कम खर्चे में गवर्नमेंट जल्दी सारा टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप कर सकता है, क्योंकि प्राइमरी प्रोसेसिंग तो बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मशीनरीज हैं जो बाहर से लाना पड़ता है। नाउ फंडामेंटल इंप्रूवमेंट इन बैम्बू सेक्टर, तो ये मैंने कहीं पढ़ा था और एज इट इज मैंने उसको लिखा है जान करके पर्पसफुली कि चाइना में क्या हुआ था। चाइना में, इन चाइना, आई रीड दिस आउट, इन चाइना अर्लियर फैक्ट्रीज वुड परचेज होल कल्म्स, पूरा बैम्बू खरीदेंगे फॉर प्रोडक्शन, बट वर अनेबल टू यूटिलाइज मोर देन 30%। जो मैं कह रहा था कि 30% 40% ही आपके काम आएगा। This ultimately led to technical and supply chain innovations. This is very critical for all of us. Introducing a near source step of pre-processing, मतलब सोर्स के नजदीक में प्री प्रोसेसिंग डालिए और अलग अलग सही मटेरियल को अलग अलग सप्लाई चेन्स में दीजिए। नियर सोर्स प्री प्रोसेसिंग वर्कशॉप्स विद स्पेशलाइज्ड बट सिंपल मशीनरी separate bamboo culm into various parts and direct them into different supply chains. This creates the opportunity for high resource utilization, मतलब ज्यादा yield आ सकेगा, बैम्बू पूरी तरह से यूटिलाइज होगा, high resource utilization rates, industry wise efficiency and greater local value addition. ग्रेटर लोकल वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है? हैदराबाद में है, पूना में है, उसको ब्लाइंड्स बनाना है, वो जानता है कि उसके कस्टमर्स को क्या मिलना है, क्या क्या उसको डिजाइन चाहिए, लेकिन उसके पास अगर वो प्री प्रोसेस बैम्बू आएगा, आ सकेगा, तभी तो आगे का फैक्ट्री डाल सकेगा वहां पे, नहीं तो नहीं डालेगा। तो ये पूरा सप्लाई चेन क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। Now this is a small part of the vision of bamboo industry in India from our side.
give opportunities to traditional artisans, mechanize them to some extent. Artisans को मैकेनाइज कीजिए ताकि उनका जो हुनर है, उनका जो स्किल है, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में लग सके. वो बहुत बेसिक काम नहीं कर रहे हो, कटिंग भी हाथ से कर रहे हैं, स्प्लिटिंग भी हाथ से कर रहे हैं, स्लाइवर्स भी हाथ से बना रहे हैं. दैट इज नॉट डन नाउ. दे शुड फोकस ऑन वैल्यू एडिशन. और इसमें एक बात और है कि हमको कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स पे काम करना चाहिए, और वो मॉडल्स हमको बल्क में बनाना चाहिए, इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना चाहिए. कुछ आर्टिजन्स करके देंगे, कुछ आगे इंडस्ट्रीज में काम होगा, तभी हम लोग देखिए बिकम अ वायबल रिप्लेसमेंट टू आइटम सप्लाइड बाय चाइना टू द वर्ल्ड. अगर आपको चाइना को बीट करना है वर्ल्ड में, तब एक ही तरीका है, आपको इंडस्ट्रियल स्केल पे काम करना है. मतलब बहुत बल्क में काम होना चाहिए, एक जैसा प्रोडक्ट मल्टीपल होना चाहिए. आज स्थिति ये है इंडिया में कि आप और मेरे जैसे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग जाके बैम्बू का 2 आइटम नहीं खरीद के ला सकते घर में. महंगा होगा. अभी महंगा होगा बोल के तो बैम्बू फिर सक्सेस नहीं हुआ ना. बैम्बू सेक्टर तो फिर वहीं रह गया. बैम्बू सेक्टर का सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? जहां हर एक आदमी अपनी लाइफ में बैम्बू यूज कर रहा है. उसको सिर्फ हैंडीक्राफ्ट आइटम में यूज कर रहा है या स्टेशनरी में यूज कर रहा है, ऐसा नहीं. सभी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बैम्बू यूज कर रहा है. टूथब्रश में भी यूज करे, उसको फर्नीचर में भी उसको यूज करे, उसका स्ट्रक्चरल, उसके घर में जो गार्डन है उसकी भी कुछ फर्नीचर बैम्बू से होना चाहिए. तो अगर ये सब करना है तो हमको सिलेक्टेड, यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एनआईडी या एसपीएस जैसे इंस्टीट्यूट से इनका इनके इनके जो टैलेंटेड बच्चे हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है कि ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन किए जाए. लेकिन ये अकेले वो नहीं कर सकते. उनको एंटरप्रेन्योर को, मशीन मैन्युफैक्चरर को साथ में मिलकर काम करना होगा, सो दैट वी कैन क्रिएट थिंग्स इन बल्क. और एक दिन का प्रोसेस नहीं है ये, लेकिन अगर चाइना को रिप्लेस करना है तो दिस इज द ओनली वे आई सी इट. और प्री प्रोसेस, थर्ड पॉइंट इज प्री प्रोसेस bamboo of defined quality standards to be made available for further validation in any part of India at a viable price. एक वायबल प्राइस में जिसको बैम्बू में काम करना है, उसको बैम्बू थोड़ा प्री प्रोसेस, पूरा राउंड बैम्बू से उसको ना मिले, थोड़ा प्री प्रोसेस बैम्बू उसको मिले और कंसिस्टेंट क्वालिटी का मिले और वायबल प्राइस पे मिले, तो ये इंडस्ट्री चल पड़ेगा. वी हैव टू ऑल ऑफ अस थिंक हाउ टू डू इट. नेक्स्ट 3 years we should have at least 6 to 8 industrial clusters of bamboo in all major states in India. इंडिया में 29-30 स्टेट्स, एटलीस्ट 20 स्टेट्स में 6 से 8 बैम्बू इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होना ही चाहिए अगले 3 साल में. ऐसा एक मेरा मुझे लगता है कि ऐसा एक टारगेट हमको लेना चाहिए, गवर्नमेंट को लेना चाहिए, सभी स्टेक होल्डर्स को लेना चाहिए. इसमें वो एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर में 5-6 कंपनी होगा, 6 से 8 हो गया, मतलब लेट्स से 25 से 30 इंडस्ट्रीज हर एक स्टेट में हो गई. दैट्स वेरी गुड टारगेट. इंडिया में अभी तो स्थिति ये है कि आप हर एक स्टेट में जाके ढूंढेंगे कि रनिंग फैक्ट्री कौन सी है, रनिंग क्लस्टर्स कौन से हैं, बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको. क्रिएट अ कॉटेज इंडस्ट्री एट द विलेज लेवल. और विलेज लेवल पे जितना प्री प्रोसेसिंग हो पाएगा, थोड़ा मैनुअली, थोड़ा मशीन के साथ, उतना अच्छा है. उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आगे लोगों को सही बैम्बू भी मिलेगा. Okay, so I'll finish my presentation. I don't know how much time I took. So I'll finish my presentation with this master principle because I had taken this topic. This is why I took this topic. A good machine manufacturer needs a good hard-working entrepreneur. मतलब मैं आपको बोलूंगा कि 15 साल हमने काम किया, लेकिन मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ कि हमने कितने अच्छे एंटरप्रेन्योर के साथ काम किया. बहुत थोड़े होंगे. तो हम लोगों को बहुत जरूरत होती है अच्छे एंटरप्रेन्योर के साथ काम करने के लिए, क्योंकि वही रिजल्ट लेके आते हैं जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं मशीन का. और एक गुड एंटरप्रेन्योर नीड्स अ गुड मशीन मैन्युफैक्चरर. एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, उसको अगर मशीन बेच दिया और उससे कोई डिस्कशन के लिए रेडी नहीं है, कोई फर्दर डेवलपमेंट के लिए नहीं है, टू एंड फ्रो प्रोसेस के लिए नहीं, तो भी पॉसिबल नहीं है. और अच्छे एंटरप्रेन्योर और अच्छे मशीन मैन्युफैक्चरर के साथ ही ये सेक्टर डेवलपमेंट हो सकता है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. थैंक यू. क्वेश्चन के लिए टाइम मिल. Thank you, Mr. Rohit. That was wonderful. We came to know about a lot of machineries which we didn't know it existed, and certainly machinery has come a long way in the bamboo sector. And thanks to people like you and a few other stalwarts for leading this effort across India. Thank you, sir. And running short of time, really. I don't know how many questions we can take. Probably I will read out the questions to you, Mr. Rohit, so you can answer them. Yes, sir. So there's a question from Mr. K.N. Murthy. Do you have any machinery to clear fell a whole thorny clump and chipping it on site?
So actually, we have never worked on harvesting technology. So anything related, I think next 2-3 questions are related to it. Correct. So no, we do not have anything. So till now, people are using power tools and ready to use things available. But I don't think very specific customized machinery has been developed for it till now. Excellent. Thank you, sir. Next question from Mr. Sagar Verma. What is the maximum budget to start bamboo ply industry? Do you So, think? sir, basically ply industry is means a lot of things. तो ply का मतलब स्टैंड वोवन प्लाई भी हो सकता है जो चाइना प्रपोज करती है, लेकिन उसमें इनहेरेंट फ्लॉज है। उसमें इनहेरेंट फ्लॉ है कि वो टॉक्सिन्स रेजिन्स बहुत एब्जॉर्ब करता है, और जो ग्रीन टेक्नोलॉजी वाली बात है बैम्बू में वो नेगेट होती है उसमें। फिर दूसरा है फ्लैटेंड बैम्बू बोर्ड्स। आई डोंट नो वो पिक क्यों नहीं किया, साउंड्स वेरी गुड। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में शुरू में काम हुआ, हमने कुछ मशीनरी भी दी थी थ्रू बैंगलोर, लेकिन वो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री में पिक क्यों नहीं हुआ मालूम नहीं। वी नीड टू नो। फिर तीसरा तरह का प्लाई है मैट बोर्ड। नाउ मैट बोर्ड ईपीटी ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेके आए थे, बट मैट बोर्ड इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि पहले बहुत सारा वैल्यू एडिशन मैट बनाने में करना पड़ता है, फिर मैट को एक के ऊपर एक रख के उसको प्रेस करके आगे प्रोसेस होता है। सो आई थिंक इट बिकम्स कॉस्टली, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी मटेरियल। एंड फाइनली स्ट्रिप बोर्ड, जो बैम्बू फ्लोरिंग है या जितना भी आप फर्नीचर बनाना चाहते हैं या चॉपिंग बोर्ड है, वो स्ट्रिप बोर्ड होता है। तो स्ट्रिप बोर्ड के बहुत ब्राइट चांसेस है इंडिया में हर एक जगह पे एप्लीकेशन की। बजट बहुत, आप जो बोल रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम बजट, अगर एक छोटा प्लाई बना रहे हैं फॉर चॉप बोर्ड्स और समथिंग एंड यू हैव ओनली वन सेट ऑफ मशीन्स, तो शायद आई कैन नॉट गिव अ परफेक्ट फिगर, लेकिन 50 लाख से तो ऊपर ही जाएगा बिकॉज हॉट प्रेस इज इन्वॉल्व। लेकिन अगर कुछ बड़ा इंडस्ट्री डालना चाहते हैं प्लाई में तो इट विल गो इन कोर्स। आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी मशीनरी लेके, पूरा सप्लाई चेन के बना के, सारे एम्प्लॉइज लेके, तो इट विल गो इन क्रोस 5 crores के ऊपर ही जाएगा हर आदमी। Okay, sir. Last question. In the interest of time, I would like to cut short on a few questions. We can answer them offline. One last question for you. Do you have any plans for bamboo carbon fiber making machinery? So bamboo carbon fiber. So I don't know what it is. So bamboo carbon is charcoal. Carbon fiber means what? Do you mean to say जो bicycle या जो? Can you define this? What is bamboo carbon fiber? The question is from Mr. KP Murthy. Probably what he meant was textiles from. Very long way to go, sir. Yeah, it's अभी long. तो हम लोग basics ही success नहीं कर पा रहे हैं. I am not aware of any company in India who is manufacturing. Okay. बहुत सारी कंपनीज इंडिया में क्लेम करती हैं चीजें, लेकिन वो सब चाइना से लाके बेच देते हैं. Okay. तो very long way to go, sir. Thank you very much, Mr. Rohit. Thank you. On behalf of BSI, I would like to thank you wholeheartedly for your precious time and sharing your wonderful knowledge. We will connect with you shortly if anybody is interested to connect with you on further details of setting up machinery. They will reach you through. That's fine, sir. That's fine, sir. Yeah? I really thank Bamboo Society of India to invite me on this forum. Thank you. Pleasure is all of us, sir.